Good morning, students. In today's class, I'll be talking about the topic optical isomerism. Now, before we go to the optical isomerism, we need to know certain terms that we've already done. The first out of them is the word isomers. Isomers are those compounds which have same molecular formula but different structural formula. Under this category, we have structural isomers. They have same molecular formula but different structural formula. Structure में फ़र्क होता है. For example, chain isomerism. Chain isomerism का अगर हम example लें, 5 carbons 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 and a branch. तो ये दोनों हो गए chain isomers. One is pentane, the other is 2-methyl butane. Position isomer पे आए 1, 2, 3, 4. This is but2ene and I have 1, 2, 3, 4. This is but1. This is called as position isomers where you differ in the position of the functional group. Sorry, the position of the functional group, that's fine. Functional isomerism, the functional group changes. 1, 2, 3, 4, 5 में यहाँ डबल बॉन्ड हो मतलब ये एल्डिहाइड हो गया यानी 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेनॉल 1, 2, 3, 4, 5 वो ये क्या हो गया कीटोन ये पेंटेनोन हो गया तो यानी ये दोनों आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है मेटामेरिज्म देयर इज अ फुल वीडियो ऑन मेटामेरिज्म इन द चैनल just type metamerism by Seema Makhijani and you'll reach it. Tautomerism is a special dynamic isomerism which is observed in case of ketones and enols. It comes under the category of keto-enol tautomerism. What do we mean? एक जगह पे keto group होता है and it changes. That is something like this. 1, 2, 3, 4. Supposing I have 2 butanol. This changes into a 1, 2, 3, 4. And all and an ene. This kind of isomerism where a keto compound undergoes a hydrogen shift leading to a double bond is called as tautomerism. Now this was just a brief outline. Today's agenda is not structural isomerism. We need to go to the next part of it which is stereoisomerism. Under the category of stereoisomerism, we have 3 points. From these 3, you have already done 2 of them. This was, if you remember, this used to be your class 11th conformational isomerism where we had those staggered and eclipsed. And they were related to the sigma bond of carbon-carbon rotation. Coming to geometrical, geometrical is cis-trans. Again, there is a video on cis-trans on the channel. Just type cis-trans or geometrical isomerism by Seema Makhijani and you'll end up here. Now today's target is optical isomerism. Now before I actually go to optical isomerism, you need to know why is the word optical used. Now for optical isomerism, it is not something like कि there are compounds which they have a weak eyesight and they wear glasses. ऐसा कुछ नहीं है कुछ चश्मे से कोई relationship नहीं है. It's not related to glasses. It is of course related to light and we will go ahead with the optical isomerism now. Now for a compound to show optical isomerism, you require an instrument which is called as a polarimeter device. This polarimeter device looks like this. Now I will try to explain each part of it. The first thing that you have is a light source. This is from where you get the light. Now the light that we have with us has got the oscillations in all directions. That means you have a horizontal component, you have a vertical component, you have a diagonal component. This is representing that the light is oscillating in all possible planes. Now you pass the light through something called as a polarizer. This polarizer is actually a Nicol prism. This Nicol prism, you can understand it something like this allows, it's a door which has got bars which are vertical. Vertical bars वाला अगर door होगा तो कौन सी वाली light pass होगी सिर्फ vertical. Horizontal वाली या diagonal वाली तो कट जाएगी ना बेटा. So the only light component which is able to pass through this polarizer is the vertical component. This is called as unpolarized light, while this is known as the plane polarized light. इसका क्या मतलब? The light is oscillating in only one of the planes. Fine. Now, the next step is you pass it through a tube
containing an aqueous solution of the compound. ये tube है. This is your sample tube. You pass your solution through a sample tube. When you pass your solution through a sample tube, you find that the component of light, as the light passes through the sample tube, it is found that it is changing its plane. And when it is changing its plane, we say it has rotated the plane of the plane polarized light. Plane polarized light was oscillating in this plane, and on passing through a solution of a sample, your light has changed the plane of oscillation. And now the light which was expected to come was this green component, but it is the dotted line, this was expected. What we observe is this red component where we see light passed was this, and the outcoming light is rotated. Now, if I want to see this rotated and my analyzer initially was like this, if I place this kind of analyzer here, this light will not pass. क्योंकि ये तो टेढ़ी है ना बेटा. This can only pass when I turn the analyzer. If this is the polarizer, the analyzer will not be able to pass the light until unless I would have rotated it. यानी इसको rotate करूँगी तभी तो bars टेढ़े हो जाएंगे and now the light will be able to pass. If I do not rotate it, I cannot see it. This is my eye. I won't be able to see the light until and unless I rotate the analyzer. This analyzer tells me as to the light is rotated, the plane of the light has been rotated to what angle. अब इसको rotate करने के बाद the light can pass through, and when this light passes through, it becomes visible. So, the components of the polarimeter are: first, light source produces the light vibrating in all directions. Polarizer or the Nicol prism allows the light passing through should oscillate only in one direction, that is any one plane. Next, the plane polarized light passes through a solution of the sample. इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे कि सैंपल में ऐसा क्या खास है कि light is getting rotated. That was to be analyzed. Next, the plane of the light can be rotated to right. I have shown you a right rotation. It could be right or clockwise. It could also be left या फिर anti-clockwise. That means the rotation options are two. Your light could have been rotated like this towards the right. नहीं तो उल्टा भी हो सकता था towards the left. But there are only two options. या तो light right की तरफ rotate होगी या फिर light left की तरफ rotate होगी. Analyzer is to be rotated to allow the rotated light to pass. Otherwise, you won't be able to see it. So, you need to rotate the analyzer. The analyzer has to be rotated either to right or to the left, depending on the compound. अगर compound ने plane of the plane polarized light को right की तरफ rotate कर दिया है, तो your analyzer has to be rotated towards clockwise or right. अगर plane of the light had been rotated towards the left, तो analyzer को भी left या फिर anti clockwise की तरफ rotate करना पड़ता. Fine. To reach the observer's eye, the light would only pass through the analyzer if the analyzer is rotated. That situation is if the light coming out is rotated. Such sample जो light को rotate कर देता है, ऐसे samples को हम कहते हैं they are optically active. Only optically active compounds are in a position to show optical isomerism. And when is an optical isomerism shown? When the compound is optically active. Optically activity के लिए you require the light to pass through a solution. This light should be plane polarized, and the solution, if you pass the light through the plane polarized light. So, the rotation of the light can be towards right or towards left. That is, if it is towards right, or it could be towards left. Right का मतलब clockwise और left का मतलब anti-clockwise. The compound both the ways, अगर rotate करना पड़ा analyzer को, तो हम कहते हैं कि जो compound अंदर इस sample tube में है is optically active. ऐसे compounds जो right को rotate कराते हैं, they are said to be dextro compounds. और जो left को rotate करवाते हैं, they are said to be levio compounds. The compounds which rotate the plane polarized light towards right or clockwise are said to be dextrorotatory, and the compounds which cause the plane polarized light to rotate towards left
are said to be leviorotatory compounds. Fine. So under optical activity, the compound has to rotate the plane of the plane polarized light. अब क्वेश्चन आता है, ऐसी क्या खासियत है इन कंपाउंड्स में that they show the optical activity? When is the compound optically active is the question mark. On analysis, सारे कंपाउंड्स को ट्यूब्स में डाल डाल के चेक किया गया. It was found the compound should be asymmetric. Asymmetric का मतलब you can never divide it into two equal halves. There is no way that you are able to divide the compound into two equal halves. Such compounds are said to be asymmetric. Now when we talk about carbon compounds, we are talking about organic chemistry. For organic chemistry, the carbon compound should have carbon with sp3 hybridization and all 4 attachments or identities should be different. मतलब अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक भी ऐसा कार्बन हो जो कि sp3 हो और उसके चारों अटैचमेंट्स डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं. Or it is called as chiral carbon atom. This is also called as stereocenter. कंपाउंड का वो वाला कार्बन जिसमें 4 बॉन्ड्स हैं और चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हैं इज सेड टू बी द एसिमेट्रिक कार्बन और द कायरल कार्बन एटम, जिसको फिर हम अब कंपाउंड्स में चेक करेंगे कि क्या ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं. तो किसी भी कंपाउंड को चेक करने के लिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्चुअली यू हैव टू सी एसिमेट्री. एसिमेट्री ऐसे नहीं समझ में आता है तो व्हाट यू कैन चेक इज कायरल कार्बन एटम तो नहीं है. फाइन. कमिंग टू 1 ब्रोमोब्यूटेन, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल्स 1 2 3 4. ये 1 पे ब्रोमो. लेट मी फिनिश द हाइड्रोजन्स H2 H2 H2. चलो एक एक करके चेक करते हैं कार्बन्स. इस कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन सेम है, सो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं तो दो अटैचमेंट सेम हो गए, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. इसके पास भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. इसके पास भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. सो दिस कंपाउंड विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो. फाइन. हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं. 3 3 H2. लेट्स चेक. फर्स्ट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं तो 3 सेम हो गए, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. इस वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन्स हैं, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. इस कार्बन के पास हैज़ गॉट 2 हाइड्रोजन्स, 2 अटैचमेंट सेम, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. नाउ पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर कार्बन. इस कार्बन के पास एक मिथाइल, एक इथाइल. 1 इज क्लोरो एंड 1 इज हाइड्रोजन. मिथाइल, इथाइल, क्लोरो एंड हाइड्रोजन. ऑल attachments are different. So this is your chiral carbon atom, hence this compound will be optically active. Fine. This can show optical isomerism. Coming to next, pentane 3-ol. Let's write down the structure. 1 2 3 4 5. Third position पे all. H. Let us satisfy the hydrogens, hydrogens, hydrogens and hydrogens. Please check. पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन्स हैं, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. सेकेंड कार्बन 2 हाइड्रोजन्स सेम हो गए तो ये भी कायरल नहीं है. थर्ड कार्बन को देखो, क्या ये कायरल है? एक अटैचमेंट OH है, एक अटैचमेंट H है, ये तो 2 अलग हो गए. दिस इज इथाइल, दिस इज ऑल्सो इथाइल. सो दिस पर्टिकुलर कार्बन हैज़ 2 इथाइल्स, 1 OH and 1 H, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट द कायरल कार्बन एटम. ये वाला कार्बन के पास 2 H है तो सेम हो गए, नॉट कायरल. ये वाला कार्बन 3 H है, नॉट कायरल, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. कमिंग टू नेक्स्ट, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल. लेट्स राइट द स्ट्रक्चर. 1 2 3, ये हो गया प्रोपेनॉल. 2,3 डाईहाइड्रोक्सी OH, यहाँ पर भी OH. ठीक है. उसके सिवा यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2. यहाँ पे क्या आ जाएगा? H. इज दैट फाइन? दैट्स द स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स चेक अपॉन. ये वाला कार्बन तो बेटा sp3 ही नहीं है, दिस इज sp2, तो इसके बारे में तो बात ही करना बेकार है.
Let's check for the presence of chiral carbon atom. This carbon 1 OH, 1 H, 1 CHO, 1 CH2OH, तो चारों अलग हो गए ना, तो ये तो chiral carbon है. फाइन. इस पे आओ. कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स, अगेन नॉट अ chiral carbon atom. एक भी chiral carbon atom होगा तो we say the compound is optically active. Coming to the next compound, 2-bromo प्रोपेनोइक एसिड. 1 2 3, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड. 1 2 पे ब्रोमो, H एंड CH3. चलो लेट्स चेक फॉर कायरल कार्बन एटम. है क्या इसमें? इसके पास तीनों हाइड्रोजन्स हैं, तो ये तो नहीं है. इस पर आइए. 1 H, 1 Br, 1 CHO एंड 1 CH3. दिस इज योर कायरल कार्बन एटम. दिस विल नेवर बी, ये तो sp3 नहीं है. sp3 होना तो ज़रूरी है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट, हैव अ लुक एट दिस कंपाउंड. इस कार्बन के पास बेटा पूरा लिखना अगर आता हो, CH3 तो 3 हाइड्रोजन हो गए. इस कार्बन के पास CH2 तो 2 हाइड्रोजन हो गए. इस कार्बन के पास भी CH2 तो 2 हाइड्रोजन है, तो नॉट कायरल. इस कार्बन पे आइए. इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक H है, एक OH है और एक बड़ा सा यूनिट प्रोपाइल है. यानी दिस पर्टिकुलर कार्बन इज योर कायरल कार्बन एटम. Therefore, this particular compound becomes optically active. This was also optically active. इसको देखो. Think about it yourself. I am saying that this is not optically active. The reason is कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके पास चारों अटैचमेंट्स अलग हो. The only carbon that you could have thought is this. इसके पास एक OH, एक H. ये क्या है? CH2 CH3. ये क्या है? CH2 CH3. तो दोनों CH2 CH3 हो गए ना, तो 2 अटैचमेंट्स आर सेम. सो दिस इज ऑल्सो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. फाइन. मूविंग अहेड. नाउ वी कम टू द actual part of the topic. Let's say I want to take up an optically active compound which is butanol, 2-butanol. ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे OH लगा हुआ है. तो ये रहा पहला कार्बन. कार्बन के पास इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है 2-ब्यूटेनॉल का? 1 2 3 4. ये रहा 2-ब्यूटेनॉल. इसमें कायरल कार्बन कौन सा हुआ? ये वाला. इसी पे फोकस कर रही हूँ मैं. यही मेरा कायरल कार्बन एटम है. इसके पास जो 4 अटैचमेंट्स हैं वो एक ये रहा, एक ये रहा. दिस शोज आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस शोज बिहाइंड द पेपर. sp3 है ना बेटा, टेट्राहेड्रल है. इस केस में आई हैव 1 इज H, 1 इज OH, द अदर 2 आर CH3 एंड C2H5. ये हो गए इसके 4 कॉम्पोनेंट्स. फाइन. अब इसका अगर मैं तुमसे कहूँ इसका मिरर इमेज बना दो. मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना होता है? लेट अस अज्यूम देयर इज अ मिरर इन बिटवीन. दिस इज द मिरर. मिरर इमेज बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? जितना दूर ये बना हुआ है मिरर से उतना ही दूर यहाँ पे वही चीज़ आनी चाहिए, तभी तो मिरर इमेज होगी. तो कार्बन, ये रहा कार्बन. ओके. इसके पास एक ये अटैचमेंट है. यहाँ पर यू वुड हैव दिस अटैचमेंट. यहाँ पर क्या आएगा? ये. यहाँ पे क्या आएगा? ये. फाइन. ये हो गए 4 अटैचमेंट्स. इट इज़ राइट डाउन द अटैचमेंट्स नाउ. ऊपर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3. यहाँ पे OH है तो यहाँ पर भी OH. यहाँ पर H और यहाँ पर C2H5. Now this compound and this compound both have got a chiral center. दोनों के पास chiral center है. ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, पर बेटा ये सेम नहीं है. सेम कैसे नहीं है? इस कार्बन के पास एक मिथाइल, एक इथाइल, एक OH, एक H. इसके पास भी तो एक मिथाइल, एक इथाइल, एक OH, एक H. IUPAC नेम अगर मैं दोनों का करूँगी सेम आएगा. बॉन्ड्स के बारे में बात करूँ सेम है, लेकिन दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. दिस इज़ नॉट सेम एज दिस. इसको सेम होता तो इसका OH भी उसी तरफ से ओरिएंटेड होना चाहिए था ना. ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है ना. इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट ओरिएंटेशन इन स्पेस इज डिफरेंट. जब ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट होती है उन्हीं को तो हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. और क्योंकि इन दोनों में कायरल कार्बन एटम है, ये हैं तुम्हारे
optical isomers. Fine. So, optical isomers are two compounds which are mirror images of each other and they are not superimposable. अगर इस कंपाउंड को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये वाला OH इधर आ जाएगा ना. तो अगर एक मिनट को सोचो, इसको उठाओ और यहाँ रख दो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज OH विल गो हियर. नाउ द सेकेंड थॉट प्रोसेस इज कि इसको एक बार रोटेट कर देते हैं. इसको रोटेट कर देंगे तो OH उस तरफ आ जाएगा. बिल्कुल सही. अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगी तो OH उस तरफ आ जाएगा. तो लेट अस रोटेट इट बाय 180 डिग्रीज. ठीक है. लेट मी टेक, ये रहा इसका एक्सेस जहाँ से मैं इसको रोटेट करने वाली हूँ. अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ बेटा तो CH3 तो वहीं रहेगा, CH3 को कुछ नहीं होगा. कार्बन भी वहीं रहेगा, उसको भी कुछ नहीं होगा. अब ध्यान से देखो, ये जब रोटेट करूँगी तो H इधर जाएगा, OH इधर आएगा, लेकिन H जो आगे है वो 180 से रोटेट करने से H विल गो पीछे. OH जो पीछे है दैट विल कम इन फ्रंट एंड दिस विल बी योर इथाइल. नाउ चेक दिस एंड दिस. क्या ये दोनों अब सेम है? नहीं. इसको इसके ऊपर रख के देखो, H और OH की पोजीशन सेम आएगी ही नहीं. तुम कितना ही कंपाउंड को रोटेट करके ट्राई कर लो, दिस कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. These two are mirror images and they are non-superimposable. Such compounds which are optical isomers, they cannot be superimposed. कितनी ही कोशिश कर लो. All right, and they are mirror images of each other. मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होना चाहिए एंड दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल. ठीक है. अब दूसरी बात, कैन आई चेंज दिस कंपाउंड टू दिस? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज दिस कंपाउंड टू दिस अनटिल एंड अनलेस यू ब्रेक अ बॉन्ड. बॉन्ड तोड़े बिना ये नहीं पॉसिबल होगा. ये कंपाउंड ये बन ही नहीं सकता. दे हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़. पता कैसे लगता है कि ये दोनों डिफरेंट है? ये पता लगाने के लिए क्या करो, इस कंपाउंड, लेट अस टेक, मैं इस कंपाउंड को फिलहाल A बोल रही हूँ और इसको मैं B बोल रही हूँ. ओके, ये दोनों डिफरेंट है. करेंगे क्या, दोनों A और B कंपाउंड्स को एक एक करके इसमें डालेंगे. प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे. सपोज करो यहाँ पे A डाला है. A डालने के बाद दिस इज द रोटेशन दैट यू ऑब्जर्व विच इज लेट्स से 10 डिग्रीज टूवर्ड्स क्लॉकवाइज, दैट इज राइट. A डालने पर, A कंपाउंड डालने पर आई गेट 10 डिग्रीज टूवर्ड्स राइट, यानी मेरा A कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया. फाइन. अब मैं इसको खाली करूँ और इसमें B का सोल्यूशन भरती हूँ. B का सोल्यूशन भरा सेम कॉन्सेंट्रेशन में, ऑफ कोर्स जैसा A का कॉन्सेंट्रेशन लिया था. लेट्स टेक 1 मोलर. 1 मोलर जब A भरा था तो लाइट वॉज रोटेटेड टू 10 डिग्रीज राइट एंड आई सेड सिंस इट इज राइट इट बिकम्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी. योर A कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी विद 10 डिग्रीज राइट रोटेशन. फाइन. अब इसको खाली करके साफ करके 1 मोलर B भर दो. व्हेन आई फिल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ B component, then again I pass the plane polarized light. This plane polarized light was rotated, but this time it was rotated in the opposite direction. The analyzer had to be rotated in the anti-clockwise direction, but 10 degrees only. Rotation दोनों की सेम है क्योंकि दोनों के कंपाउंड्स में फॉर्मूला सेम है, नाम सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, अटैचमेंट सेम है, बट दे आर मिरर इमेजेस, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है. तो उनकी रोटेशन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशन सेम होता है. यानी आपका B कंपाउंड जो होगा will be leave your rotatory by 10 degrees only. That is the speciality and the important information. When we talk about optical isomerism rotate the plane of plane polarized light. इनमें से एक डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लीवियो होगा, but they would have same magnitude of rotation of plane polarized light. Fine. So, what is so special about optical isomerism? Optical isomerism cannot be superimposed on each other. They are mirror images of each other. One of them is dextrorotatory, the other is levorotatory. का मतलब if you fill them up into the polarimeter tube, you find if one rotates the light towards right by 10 degrees, the other would rotate the light towards left by 10 degrees. इनका एक और नाम है which is enantiomers.
So that was what I was trying to say. Enantiomers is the term that I wanted to define. Optical isomers are also called as enantiomers. Fine. Now coming to one more important term, we'll just revamp the enantiomers once more. इन दोनों में क्या बॉन्ड्स में फ़र्क है? नहीं. तो क्या केमिकल रिएक्टिविटी में फ़र्क होगा? नहीं. इन दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी बिल्कुल सेम होगी. मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम होगा. बॉइलिंग पॉइंट सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, नेम 2-butanol. फ़र्क कहाँ है? ओनली इन द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट is where they differ. So I'll just sum it up. When we talk about the word enantiomers, what comes to our mind? Enantiomers are compounds which are optical isomers, number one. Secondly, one is dextrorotatory और इसको प्लस भी बोलते हैं. Other is लीवियोरोटेटरी या इसको माइनस भी बोलते हैं. डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी और प्लस से डोनेट करते हैं, लीवियो को स्मॉल एल और माइनस से डोनेट करते हैं. बट दे आर रोटेटिंग इन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन. एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ. इनका सेम क्या क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, IUPAC नेम भी तो सेम है, लेकिन फिर अलग क्या है? ओनली प्रीफिक्स D एंड L. जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसके नाम के आगे D लगा देंगे, जो लीवियो रोटेटरी है उसके नाम के आगे L लगा देंगे. बेटा कंपाउंड को देखकर नहीं पता लगता है कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवियो है. अगर कंपाउंड का पता लगाना है कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवियो है तो यू हैव टू पुट देम इनटू द ट्यूब एंड देन चेक. Otherwise it is not possible by looking at the compound कि कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा कौन सा लीवियोरोटेटरी होगा. This you cannot identify, but you can identify that yes this would be optically active, this would rotate the plane of polarized light. एंगल भी नहीं पता लगा सकते हैं ना, एंगल पता लगा सकते हैं, सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं कि रोटेट करेगा या नहीं, राइट को करेगा लेफ्ट को करेगा, फॉर्मूला को देख के नहीं पता लगा सकते. सो एनांशियोमर्स में सेम क्या क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, IUPAC नेम सेम होता है, सिर्फ प्रीफिक्स लगा देना आता है D और L में. उसके सिवा फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है. व्हाट आर दे सेम? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू गिव यू अ फ्यू. दीज आर ऑल सेम बिकॉज कंपाउंड तो बिल्कुल सेम दिख रहा है ना. उसके सिवा द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो सेम. क्यों भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, दोनों में बॉन्ड्स तो सेम है. ये रिएक्टिव साइड कौन सा होगा? इसका हुआ है, इट्स एन अल्कोहल. आप कोई भी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कर लो, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेट करवा लो, SOCl2 के साथ Cl बनवा लो, लूकास टेस्ट कर लो, कुछ भी, बोथ ऑफ देम वुड गिव द सेम टेस्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव गॉट द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सारे बॉन्ड्स भी तो सेम है. फाइन. सो chemical properties will also be same because all bonds are same. They would therefore differ. ये तो हुए सारे same properties इनके. उसके सिवा they differ only in the rotation of plane polarized light. In fact, they differ in the, it should be direction of rotation. क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है. अगर एक +10 डिग्रीज है तो दूसरा -10 डिग्रीज है. दिस इज जस्ट एन आर्बिट्ररी वे टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली इनकी रोटेशंस क्या है हमको नहीं पता है. एक और अगर बोले प्लीज ड्रॉ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनांशियोमर एंड ड्रॉ द 2 एनांशियोमर्स. तो कुछ नहीं करना है बेटा, सबसे सिंपल बताऊँ क्या करना. एक कार्बन बनाना, उसके 4 अटैचमेंट्स बना देना, ऐसे चारों अलग कर देना. मैंने एक H लगा दिया, एक F लगा दिया, एक Br लगा दिया और एक CH3 लगा दिया. कोई भी 4 लगा दो. उसके बाद ये एक एनांशियोमर मान लेंगे, उसके बाद उसका मिरर इमेज बना देना. क्या करना है? सेम एक कार्बन लिखना है,
ऊपर H लिखना है, इधर डॉटेड F लिखना है, इधर CH3 लिखना है, और ये रहा तुम्हारा PR. तो दीज टू वुड बी योर पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स. याद क्या रखना है, कायरल कार्बन एटम ज़रूर आना चाहिए. कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवियो है, हमें नहीं पता. इस कंपाउंड का बाय द वे नाम क्या होगा, ऐसे लिखो, CH3 CH Br एंड F. क्या नाम लिखो, 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो इथेन. ठीक है. तो कोई सा भी कंपाउंड बनाया जा सकता है अगर आपसे कहें गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एनैंशियोमर एंड ड्रॉ इट. ठीक है. इसके सिवा देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट आई हैव टू से. सपोज करो ये दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड का मैं इक्वी मोलर रेशियो ले लूँ, कॉम्पोजिशन ले लूँ. ठीक है. इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल सोल्यूशन बना दो दोनों का, और वो सोल्यूशन मैं इसमें डाल दूँ. दोनों का सोल्यूशन मिला के डाल दिया. दोनों एनैंशियोमर्स का इक्वी मोलर सोल्यूशन अगर डाल दूँ तो एक 10 डिग्रीज राइट को रोटेट कर रहा है, दूसरा 10 डिग्रीज लेफ्ट को रोटेट कर रहा है. तो नेट रोटेशन क्या आएगी, 0. यानी इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ इक्वी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू एनैंशियोमर्स देन यू विल हैव नेट 0 ऑप्टिकल रोटेशन. अगर 0 ऑप्टिकल रोटेशन हो जाता है, ऐसे मिक्सचर का एक पर्टिकुलर नाम है इक्विमोलर कॉम्पोजिशन ऑफ एनैंशियोमर. लिया तो उसका नाम हो जाता है रेसेमिक मिक्सचर, या फिर इसको बोलते हैं रेसेमिक मॉडिफिकेशन. सो अगर दो एनैंशियोमर्स हैं तुम्हारे पास, दोनों को इक्वल अमाउंट्स में कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन बना दो और उस सोल्यूशन को बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर. फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे Dl लगा दो आगे एज अ प्रीफिक्स, या फिर प्लस एंड माइनस आगे लगा दो, उसके बाद यही वाला नाम लगा देना. यानी कि इफ़ यू हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, जो इससे पहले किया था हमने एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या नाम था, 2 ब्यूटेनॉल था. ठीक है. इस 2 ब्यूटेनॉल का अगर मैं इक्वी मोलर मिक्सचर ले लूँ और मैं बोलूँ इसका रेसेमिक मॉडिफिकेशन बनाना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, Dl लगा के ब्यूटान 2 ऑल का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द रेसेमिक मिक्सचर. या फिर प्लस माइनस लगा दो. सिर्फ प्लस लगाए तो मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सिर्फ माइनस लगाए तो मतलब लीवियो रोटेटरी. लास्ट टर्म देयर इज अ स्पेशल वर्ड कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन. ये क्या होता है, दिस इज इफ you convert, I repeat, convert any one enantiomer, एक कोई सा भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, any one enantiomer into a racemic mixture में कन्वर्ट कर दो तुम, तो इस बात को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं. सो रेसिमाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट enantiomer इनटू अ रेसेमिक मिक्सचर. मतलब एक था और तुमने उसमें से आधे को ये बना दिया. केमिकल रिएक्शन से होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता, घुमाने से तो होता नहीं. कोई केमिकल रिएक्शन किया कि आधा ये ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड दैट वुड बी सेड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ अ रेसेमिक मिक्सचर. एंड दिस प्रोसेस बाय विच यू कन्वर्ट दिस इनटू हाफ ऑफ दिस इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन. विद दिस I close the class. This is your summary